गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। पिछले टर्म पर मैंने आपको प्रोज में लेसन दी गंगा पढ़ाना शुरू किया था और इसमें मैंने 4 पार्ट्स आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में समझाए थे। इससे पहले कि हम 5th पार्ट कंप्लीट करें, आई वॉन्ट टू रिपीट द प्रीवियस पैसेजेस बट इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। Let's start. The lesson, the Ganga, is written by Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of India. And this lesson was written in 1954. This is an extract from his last will and testament. In the first passage, Pandit Jawaharlal Nehru thanks his countrymen for their love and affection. And then he also thanks his colleagues and comrades who have been joint partners in great undertakings for the freedom of India. Then he starts his testament that when he dies, his body must be cremated and a small handful of ashes must be thrown in the Ganga. He tells us the reason of his love for Ganga. He says that I don't have the religious sentiment in this matter. He likes Ganga only because his life has been attached to this river. Since his childhood, he had played near Ganga and the Jamuna, both the rivers in Allahabad. As he grown older, his attachment also grown. He had watched the different moods of the Ganga. Ganga is the river of India, is the beloved of her people. It has always been a pious river for Indian people, and around which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, triumphs and defeats. After that, Pandit Nehru tells us about the different moods of this river. As in the morning, Ganga looks smiling and dancing, but in the evening, it is full of mystery. And as the winter season comes, the Ganga becomes very slow and narrow stream, but in monsoon it becomes dexterous like the sea. It becomes very powerful. The Ganga reminds Pandit Nehru snow-covered peaks and deep valleys of the Himalayas, and Himalayas were very dear to Pandit Nehru. Then this river flows through the rich and vast plains below, where Pandit Nehru has worked and lived most of his life. So in this way, the Ganga was dear to Pandit Nehru not only because of religious sentiment, but because of his attachment to this river. Then Pandit Nehru says that the Ganga river coming out of the Himalayas, that is like past history. It is running through the plain areas, that is like present, and it goes up to the great ocean, that is like future. So in this way, symbolic significance of this river. So students, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अभी मैं आपको next passage पढ़ाऊंगा। तो open the part number 5th. Let's go. So students, let's start today's passages. And though I have discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Students, Pandit Jawaharlal Nehru कहते हैं, and though, और यद्यपि, I have discarded, मैं त्याग चुका हूँ. Discard means त्यागना, यानी give up करना. तो मैं त्याग चुका हूँ मच, मैंने अधिकतर, ऑफ पास्ट मैंने भूतकाल वाली, ट्रेडिशन मीन्स परंपराएं, एंड कस्टम मैंने रीति रिवाजों को. तो मैंने भूतकाल की जो परंपराएं हैं और रीति रिवाज हैं उनको अधिकतर मैंने त्याग दिया है. अर्थात ऐसे रीति रिवाज और ऐसी परंपराएं जो हमारे समाज में बुराई के रूप में प्रचलित थीं. तो पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं उनको त्याग चुका हूँ. एंड एम अनक्शस, और मैं उत्सुक हूँ, दैट मीन्स कि इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, कि भारत अपने आप को रीड कर ले. रीड में छुटकारा पाना,
यानी भारत को छुटकारा मिल जाए ऑफ ऑल शेकल्स, सभी जंजीरों से, दैट बाइंड, जिसने बांध रखा है, एंड कंस्ट्रेन, और रोक रखा है हर मैंने उसको। तो भारत के पैरों में कुछ जंजीरें पड़ी हुई हैं, प्राचीन कुछ ऐसे रीति रिवाज और ऐसी परंपराएं हमारे देश में प्रचलित थीं जिन्होंने हमारे देश के विकास को रोका हुआ था। तो पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष उन सभी जंजीरों से मुक्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने भारत को बांध रखा था और रोक रखा था। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांट रखा था, यानी विभाजित किया हुआ था, भेदभाव की नीति अपनाई हुई थी लोगों ने। एंड सप्रेस में दबा कर रखना, और दबा कर रखा हुआ था वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से अधिकतर संख्या को, यानी अधिकतर लोगों को। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, प्रिवेंट मीन्स रोकना, और रोक रखा था फ्री डेवलपमेंट, मुक्त विकास को, ऑफ बॉडी, शरीर के भी, एंड द स्पिरिट, और आत्मा की। तो आत्मा और शरीर का मुक्त विकास भी उन्होंने रोक रखा था। तो ऐसे परंपराएं और ऐसे रीति रिवाज जिन्होंने भारत के लोगों के न केवल शरीर को बल्कि आत्मा के मुक्त विकास को रोका हुआ था, अधिकतर लोगों को दबाए हुए था, उसके लोगों में भेदभाव फैलाया हुआ था। तो ऐसे रीति रिवाजों को मैं त्याग चुका हूँ। दो मैंने यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैं ये सब चाहता हूँ, येट आई डू नॉट विश, लेकिन मेरी ये इच्छा नहीं है टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, कि मैं पूर्ण रूप से भूतकाल से अलग हो जाऊँ। यानी भूतकाल में कुछ अच्छी बातें भी थी, उनको मैं अपनाए रखना चाहता हूँ, पूरी तरह से मैं अलग होना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे तो गर्व है अपने उस महान विरासत पर। इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। दैट हैज़ बीन, जो हमारा है, एंड इज अवर्स, और हमारा रहेगा। एंड आई एम कॉन्शियस दैट, और मैं सचेत हूँ कि आई टू, कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक के समान, एम एम लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, न टूटने वाली उस चैन का, विच गोज बैक टू द डान ऑफ हिस्ट्री, जिसका उदय कहाँ से हुआ है? इतिहास के डान से हुआ है, यानी प्रातः से हुआ है, प्रातः काल से। इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक ऐसा भूतकाल था जिसको कि याद भी नहीं किया जा सकता, जो मेमोरी से भी बाहर है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चैन को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, मैंने, क्योंकि आई ट्रेजर इट, मैंने इसको बचाकर रखा हुआ है, एंड सीक इंस्पिरेशन फॉर इट, और मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। तो ट्रेजर कहते हैं तिजोरी में किसी चीज़ को छिपा कर रखना, बचा कर रखना। तो मैंने उसको बचा कर रखा हुआ है, तो संभाल कर रखा हुआ है, और मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और मेरी अपनी इस इच्छा के सबूत के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को, भारत की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, और अपनी इस इच्छा के सबूत के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, दैट मीन्स की ए हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जिसको कि बहा करके ले जाया जाए उस महासागर तक जो कि भारत के शोर्स मीन्स किनारों को धो रही है। सो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, वहाँ से फिर इंडो ओशन में चली जाती है, जो कि भारत के पश्चिमी दक्षिणी किनारे हैं, उन वहाँ से बहते हैं, ये सागर वहाँ से गुजरता है। तो इस प्रकार ये था पंडित नेहरू का गंगा प्रेम का कारण, कि गंगा नदी से इसलिए प्यार करते हैं कि गंगा नदी भारत से हर तरह से अटैच्ड है। गंगा नदी ने भारत के इतिहास को देखा है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल कर आ रही है, जो कि पंडित नेहरू को बड़े प्रिय थे, और गंगा नदी उस महासागर में जाके गिर जाती है, जो कि भारत के निचले छोर में जो तट हैं उनसे छूता हुआ बहता है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। So students, now these are the concluding lines of this lesson. The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise. Major portion of my ashes, मेरी जो ashes हैं उसका एक बड़ा हिस्सा should however be disposed, यद्यपि उसका
उपयोग किया जाए ऑफ अदरवाइज बने अलग तरीके से। स्टूडेंट्स, अपनी वसीयत के शुरू में पंडित नेहरू ने कहा था कि मेरी राख का मुट्ठी भर गंगा नदी में फेंक दिया जाए, और उसके बड़े हिस्से का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो अब शुरू हो चुका है। अब उस बड़े हिस्से का क्या किया जाएगा पंडित नेहरू अब बताने जा रहे हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, these to be carried high up in the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India toil। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, these to be carried high up, इनको काफ़ी ऊंचाई पर ले जाया जाए, into the air, हवा में, in an aeroplane, एक हवाई जहाज में, and scattered, मैंने बिखेर दिया जाए, from that height, उस ऊंचाई से, over the fields, उन खेतों के ऊपर, where the peasants, peasants का मतलब फार्मर्स, जहाँ पे भारत के किसान टॉयल मैंने परिश्रम कर रहे हैं। तो इस प्रकार पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी एशिज का एक बड़ा हिस्सा जो है हवाई जहाज़ में काफ़ी ऊंचाई पर ले जाया जाए, उन खेतों के ऊपर से जहाँ पर भारत के किसान खेती कर रहे हैं, और वहाँ से उन खेतों में बिखेर दिया जाए। सो दैट मीन्स, ताकि दे माइट मिंगल विद द, माइट मिंगल, मिंगल मीन्स मिक्स हो जाना, विद द डस्ट एंड सॉइल, डस्ट एंड सॉइल मीन्स मिट्टी ऑफ इंडिया, ताकि वे भारत की मिट्टी से मिंगल हो जाए अर्थात मिक्स हो जाए, तो भारत की मिट्टी में वो मिक्स हो जाए, एंड बिकम, और बन जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल जिसको अलग ना किया जा सके, तो वो भारत का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसको अलग ना किया जा सके। तो भारत की मिट्टी से भी पंडित नेहरू को इतना प्रेम था कि अपनी एशिज का एक बड़ा हिस्सा वो भारत की उस मिट्टी में मिला देना चाहते हैं जिसको अलग ना किया जा सके, और जहाँ पे भारत के किसान परिश्रम कर रहे हैं। ये उनकी वसीयत अब लास्ट में उन्होंने बताया है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने ये वसीयत लिखी है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन 21st डे ऑफ जून, जून की 21 तारीख को, इन द ईयर 1954, और वर्ष कौन सा है, 1954। तो इस प्रकार दिस वॉज द लेसन द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत बताई। और ये लेसन पढ़ लेने के बाद अब हम इस लेसन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशंस के हैं, उसके बाद हम इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मैचिंग नंबर्स करेंगे। तब तक आपको स्टूडेंट्स इस लेसन को दोबारा पढ़ना है, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप कॉपी में नोट कीजिए और उनको लर्न कीजिए। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।